नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में जो जो टाइप ऑफ एलर्जेंस प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसके सामने जो रिस्पॉन्स बना रहा है हमारा बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जस्ट मेरे स्टूडेंट्स, टाइप कितने होते हैं स्टूडेंट्स? उसके 4 टाइप्स। So that is the first one, hypersensitivity. So what is called as the hypersensitivity? The hypersensitivity refers to the undesirable reactions produced by the normal immune system, including the allergies and the autoimmunity. तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस को जो किसका रिजल्ट करेगी, जो प्रोड्यूस करा है नॉर्मल इम्यून सिस्टम के साथ जो भी टाइप ऑफ हमारी बॉडी में एलर्जीज एंड द ऑटो इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एलर्जेंस मींस कि क्या होगा, immunoglobulin E, that is called as what, auto allergens with the hypersensitive reaction. And what is called as the autoimmunity? So जो ऑटो इम्यूनिटी कॉज करे, जो हमारे बॉडी हमारे ही सामने उसका प्रोडक्शन करे, जो उसका प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं डायबिटीज, दैट इज अ autoimmune disease. These reactions may be damaging, uncomfortable or occasionally fatal. जो क्या कर रहा है hypersensitive reaction के जो सेल को डैमेज कर रहा है, अनकंफर्टेबल कर रहा है और occasionally fatal कर रहा है स्टूडेंट्स, राइट? Next is the classifications. How many classifications are there? That is the 4 classifications are observed here, that is hypersensitivity reaction. Type 1 that is the immediate or atopic anaphylactic reaction type of anaphylactic, that is a reaction name of due to the hypersensitivity type 1 causing factor. Type 2, that is antibody dependent or a cytotoxic form dependent, antibody cytotoxic dependent cell, that is the secondary type of the hypersensitivity reaction. Type 3, that is the immune complex type of the reactions. And type 4, that is the cell mediated or the delayed type of the hypersensitivity, that is caused by the hypersensitivity, then the type of the reactions. First one, type 1 immediate or anaphylactic hypersensitivity. What is called as the type 1 anaphylactic hypersensitivity? The type 1 hypersensitivity is also known as what, a immediate or anaphylactic hypersensitivity. मीन्स कि टाइप 1 सेंसिटिविटी क्या बोलते हैं हम, नोन एज द एनाफाइलेटिक, मीन्स कि तुरंत ही रिस्पॉन्स दे देना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, anaphylactic hypersensitivity. The reactions may involve the skin, urticaria and the eczema. What is called as the urticaria? So that is observed wheel-like appearance are observed onto the body. That is called as what, urticaria. जो measles बनता है, पर measles में dots बनता है, अर्टिकारिया में measles बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, राउंड व्हील लाइक ऑफ द स्ट्रक्चर में बनेगा। जो मैंने पिक्स लिया है, जो हम ये जब कंप्लीट होगा उसके बाद में आपको बताऊंगी कि किस किस की तरह अपीयरेंस होगा। अर्टिकारिया एंड द एक्जिमा, eyes, conjunctivitis and the nasopharynx cause for the rhinorrhea rhinitis. Rhinorrhea rhinitis, that is a bee like appearance, means की swelling of the conjunctivita और the lips portion से वो क्या हो जाता है, swell हो जाता है। and nasopharynx means की जो swelling portion nasopharynx, pharynx forms है, pharynx जो उसमें swelling condition हो जाएगा, tonsillitis form caused होगा। bronchopulmonary tissue cause the asthmatic condition. तो bronchopulmonary क्यों, because of the allergens positions are there, asthmatic conditions का reason behind आपने। and gastrointestinal tract, that is caused for the gastroenteritis. The reaction may cause a range of the symptoms for minor inconvenience to the death. अगर उसमें रेंज में डैमेज सिम्टम्स, अगर अपने माइनर भी सिम्टम्स अपने कन्वर्शन फॉर्म में देखने को मिलेगा, तो वो क्या कॉज करेगा, डेथ को। The reactions usually takes 15 to 30 minutes from the time of the exposure to the antigen. जो reactions का time कितना है, तो 15 to 30 minutes जो time exposure से antigen को expose करने। Although sometimes it may have a delayed onset, means कि वो delayed type of the reactions होगा 10 to 12 hour। अगर 15 to 30 minutes में भी देखने को मिल सकता है, और 10 to 12 hours के बाद भी उसका एनाफाइलेटिक रिएक्शन हमें कॉजिंग फैक्टर में देखने को मिला है। mediated by the immunoglobulins E antibody to specific antigen. mediator means कि किसके साथ वो बाइंड है, तो immunoglobulin E के साथ एंटीबॉडी बाइंड है for the specific antigens के exposure के साथ। The primary cellular component in this hypersensitivity is the mast cell or the basophil. जो primary cellular components जो है in this hyper, वो mast cell और basophils के activation form के साथ वो
स्टार्ट होगा। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस किसको इनहिबिट कर रहा है, मास्ट सेल और बेसोफिल्स के साथ उसकी एक्टिविटी कर रहा है। अनदर है एक कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे सिस्टम, जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो एंटीजन एंटीबॉडी को बाइंड, मीन्स की जो भी एंटीबॉडी बाइंड हुई है, जो एंटीबॉडी को बाइंड करने में C3 पाथवे मींस की कॉम्प्लीमेंट पाथवे उसको बाइंड करने में हेल्प कर रहा है। तो द अदर वन इज द मास्ट सेल बेसोफिल एंड कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म। द रिएक्शन इज एम्प्लीफाइड एंड और मॉडिफाइड बाय द प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफाइल्स एंड द इओफाइल्स। जो रिएक्शन एम्प्लीफाइड हो रहा है मींस की फास्ट डबल होना, वो किसके साथ मॉडिफाइड हो रहा है, तो प्लेटलेट्स, स्पेसिफिक न्यूट्रोफाइल्स एंड द इओसिनोफाइल्स के, जो प्लेटलेट्स और न्यूट्रोफाइल्स और इओसिनोफाइल्स के साथ मॉडिफाइड कर रहे हैं। कौन सा, फर्स्ट टाइप 1 एनाफाइलेटिक हाइपरसेंसिटिविटी। Mast cell stimulated and release the histamine. Obviously histamine ब्रेकाडाइलिन जो फैक्टर है वो किसको रिलीज कर रहा है स्टूडेंट्स, मास्ट सेल के द्वारा स्टिमुलेट रिलीजिंग फैक्टर के, जो इंफ्लेमेटरी और इंजरी कॉज करने में हेल्प, इंजरी कॉज होता है। अगर वहां तक ब्लॉक नहीं होगा तो जैसे जैसे वो हिस्टामाइन, जैसे इन्फ्लामेशन रिएक्शन में होता है, जैसे जैसे वे हिस्टामाइन और ब्रेकाडाइलिन रिलीज होता है, उसी तरह से इंजरी कैसे होती है, रिलीज होती है, मींस की कॉज होती है। कॉजेज ऑफ द एलर्जेंस, कौन कौन से कॉजेज है, तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि कॉमन एलर्जेंस एसोसिएटेड विद टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, तो दैट आर प्रोटीन, प्लांट पोलन्स, ड्रग्स, फूड, इंसेक्ट प्रोडक्ट एंड मोल्ड स्पोर एंड द एनिमल हेयर और डेंगर। जो जो क्या है कि जो एलर्जेंस को कॉज कर रहा है और वो किसको लीड कर रहा है, हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 1 को लीड कर रहा है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है कि कौन कौन से, फॉरेन ऑफ सीरम वैक्सीन, प्लांट पोलन में आएगा तो रे ग्रास, रेगवीड, रेगवीड, टिमोथी ग्रास, ब्रिंच ट्रीज, ये सभी प्लांट्स के एक स्पीसीज ब्रीड है कि जो एलर्जेंस को कॉज करेगा। ड्रग्स कौन कौन से है जो एलर्जेंस कॉज करेगा, जैसे कि पेनिसिलियम, सल्फोनेमाइड्स, लोकल एंटी एनेस्थेटिक्स, सेंसियासाइक्लाइड। फूड्स कौन कौन से, नट्स है, सी फूड है, एग है, पीज है, बीन्स है और मिल्क है, जो क्या कर सकते हैं, एलर्जेंस को इनबिट फॉर्म कर सकते हैं। That insect है बी वेनम, वेस्ट वेनम, एंट वेनम, कॉकरोच, डस्ट माइट्स, वो सभी क्या है, एलर्जेंस के फॉर्म्स है। Another form है mold spores, animal hair and the dander that are causing for the allergens. Allergens is called as the allergens. Allergies are non-parasites antigens that can stimulate a type 1 hypersensitivity response. जो क्या कॉज कर रहा है स्टूडेंट्स के, टाइप 1 एलर्जेंस को कॉज कर रहा है स्टूडेंट्स। एट्रोफाइट, एट्रोफी किसको बोलते हैं, तो एट्रोफी इज द टर्म ऑफ द जेनेटिक traits to have a predispositions for localized anaphylaxis। अब देखो एट्रोफी के बारे में हमें बात करनी है, तो क्या बोलते हैं, एट्रोफी कॉजिंग फैक्टर क्या है कि जो टाइप ऑफ द एलर्जेंस है जो हमारी बॉडी में जेनेटिकली फॉर्म में ही ट्रांसमिट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एट्रोफी, जो लोकलाइज्ड फॉर्म में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कॉज करता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स एटोपिक। Atopic individuals have higher level of the immunoglobulins E and the eosinophils। मींस कि एटोपिक का रीजन क्या होता है कि जब तक इन्फेक्शन बढ़ेगा उसी तरह से क्या होगा, जो सराउंडिंग फॉर्म में बढ़ रहा है, जो लेवल में जाके इन्फेक्शन कॉलोनाइज्ड हुआ, वहां से इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, वहां जाके इम्यूनोग्लोबुलिन्स ई अटैच हुआ, तो जैसे 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 बढ़ेगा इन्फेक्शन की साइट, उसी तरह से एक्टोपिक का रीजन क्या होता है, एटोपिक का मींस के आसपास जो इंडिविजुअल हायर लेवल eosinophils और immunoglobulin को accumulate करेगा, that is caused for the atrophy reasons. Mechanism, the initial introduction of the antigen produces to an antibody response, more specifically the type of the antigen and the way in which is administered induce the synthesis of the immunoglobulin E antibody in particular। means कि जो initial introduction जो antigen produced हो रहा है, जिसके सामने एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है, जो मोर स्पेसिफिकली है जो टाइप ऑफ द एंटीजन एंड the way in which the administrated induce the synthesis of the immunoglobulin E antibody in particular। जो immunoglobulin E है in particular manner में क्या होगा, एंटीबॉडी उसके सामने जनरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ द immunoglobulin E। इम्यूनो, जैसे कि इसके यहाँ पे ये बात हो रही है कि एक टाइप ऑफ इन्फेक्शन होगा ना, उसके सामने 3 टाइप्स ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स वहां पे प्रोड्यूस होके बाइंड होगी। Immunoglobulins E binds very specifically to receptors on the surface of the mast cell which remains the circulating। means कि जो immunoglobulin E है वो specifically फॉर्म से complementary pathway के साथ बाइंड होती है रिसेप्टर के साथ on the surface of the mast cell को, जो कहाँ से इन्वेट होगा, जो बी सेल से आएगा,
और मास्टर सेल के साथ इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरल्यूकिन 5 वहां जाके अटैच होगा और पूरी मैकेनिज्म बनेगी इम्यूनिटी सिस्टम में। फिर जाके बी सेल क्या कर लेगा, इंटरल्यूकिन वाली मैकेनिज्म को याद कर लेगा। जो इंटरल्यूकिन कहाँ से आया, तो वो आया CD4 CD8 जो टी हेल्पर सेल से बनते हैं, वहां से इनलेट होके मास्टर सेल के साथ बाइंड हुआ। तो वो सभी चीजें स्टूडेंट्स वहां जाके बाइंड होके बी सेल को वो देता है। बी सेल को देने के बाद विच रिमेन द सर्कुलेटिंग, मीन्स की ये फर्स्ट टाइम एक्सपोजर से, इसीलिए ये जो सी टेल का वाला जो मैकेनिज्म है, जो जो टी सेल्स है और उसका जो हेल्पर सेल्स की मैकेनिज्म उसके साथ बाइंड रही है, उसके साथ से बाइंड होने के बाद वहां से मास्टर सेल से प्रोड्यूस करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा, फिर न्यूट्रलाइजेशन करेगा और ये सब सर्कुलेटिंग फॉर्म में रिमेन होगा। Reintroduced antigen interact with the immunoglobulin E on the mast cell, causing the cell to degrade and release the large amount of the histamine, lipid mediators, and chemotactic factor that cause the smooth muscles contraction, vasodilation, increase the vascular permeability, and bronchoconstructions and edema. This reactions occurs very suddenly and causing the death. See students, ये क्या कर रहा है कि immunoglobulin E mast cell को release करेगा, सेल को जाके मास्टर सेल के डिग्रेडेट करेगा, रिलीज करेगा लार्ज अमाउंट में हिस्टामाइन, लिपिड मेडिएटर्स एंड केमोटैक्टिक फैक्टर। तो ब्रेकाडिलेटिव फैक्टर दैट इज आल्सो केमोटैक्टिक फैक्टर। तो ये सभी चीजें जाके क्या होगी, सीक्रेट होगी। वो सीक्रेट होने से क्या होगा कि स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को इंजर्ड करेगा, वैसोडाइलेशन करेगा, इंक्रीज द वेस्कुलर परमेबिलिटी करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शंस एंड एडिमा कॉज करेगा। एडिमा मींस की ब्रोंको कंस्ट्रक्शंस में ऑब्वियसली इम्यूनोग्लोबुलिन सी एलर्जेंस के कारण वहां पे स्पाज्मेटिक फॉर्म होगा और एडिमा फॉर्म होगा और इन्फ्लामेशन कंडीशन अकर होगी। दिस इज रिएक्शंस वेरी suddenly and causing the death, that is a very severe form, ये suddenly form होगा because exposures जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसे ऐसे तरह से ब्रैकेडाइटिंग फॉर्म, हिस्टामाइन एंड लिपिड मेडिएटर, केमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज होगा। जैसे जैसे रिलीज होगा उसी तरह से इंजरी कैसे होगी, बढ़ती जाएगी और उसी तरह से बढ़ती जाएगी और उसी तरह से कॉजिंग द डेथ। मेडिएटर्स ऑफ द टाइप 1 कौन कौन से मेडिएटर्स है, तो हिस्टामाइन, साइटोकाइन, टीएनएफ अल्फा, इंटरलुकिन फर्स्ट एंड इंटरलुकिन 6, केमो सॉरी यहाँ पे इंटरलुकिन फर्स्ट एंड इंटरलुकिन 6 है। आई वाज टोल्ड यू दैट 2 and 5, नॉट 2 and 5, दैट इज इंटरलुकिन 1 एंड इंटरलुकिन 6। केमो अट्रैक्टेंट फॉर न्यूट्रोफाइल्स एंड इओसिनोफाइल्स, कौन कौन से केमो, तो न्यूट्रोफाइल्स और इओसिनोफाइल्स वहां पे अटैच होंगे। एंजाइम्स कौन कौन से रिलीज होंगे, ट्रिप्टेज, काइमेज एंड द कैटपेप्सिन जो वहां पे रिलीज होंगे। चेंजेस इन अ कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक टिश्यू ब्रेकडाउन कैसे होगा, बिकॉज ऑफ द हिस्टामाइन and that enzymes are released over there into the connected matrix and tissue are the breakdown. Leukotrienes and prostaglandins PGD2 and the leukotrienes are released over there. See, that is the reasons of allergens which is invaded with the specific antibody, that is a antigen immunoglobulins E, that is bind with, and the mast cell, that is the grand histamines and the leukotrienes, that is release the chemotactic form and granulotic form is there, and this was the release because of the antigenic form is attached. जितने जितने बढ़ते जाएंगे उसी तरह से ये हिस्टामाइन और ल्यूकोकाइनेज सीक्रेट होता जाएगा और सेल को डैमेज करेगा। How it is diagnosed? The diagnosis test for the immediate hypersensitivity include the skin prick and the intradermal test, means कि जो कौन हो रहा है स्टूडेंट्स, जो डायग्रामेटिक टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसका, तो इमीडिएट हाइपरसेंस इंक्लूड द स्किन टेस्ट, measurement of the total immunoglobulin E and the specific immunoglobulin E, antibodies against the suspected allergens की जो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ई कितने हैं वो स्किन टेस्ट करना पड़ता है। कोई टाइप ऑफ द थेरापेटिक हमें इन्वेड करनी पड़ती है जिनके कारण पता चलता है कि कितने टाइप ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन ई का सिक्रेट हुआ है, उसके साथ से पता चलता है कि जो सस्पेक्टेड एलर्जेंस है वो अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन ई के साथ। टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंड स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडीज आर मेजर्ड बाय अ मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम इम्यूनोएसे, मींस कि जो स्पेसिफिक टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंड स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडीज जो मेजर है, जो मॉडिफिकेशन कर रहा है एंजाइम्स इम्यूनोएसे, जो एलाइजर टेस्टिंग के साथ हमें पता चल जाता है। Increase the immunoglobulins E IgE level are indicative of an atopic condition, although the IgE may be elevated in some non-atopic disease, example myelomas, helminthics infection etc. जो IG level indicate हो रहा है, जो atopic condition है, atopic condition पूरी हमने पढ़ी, तो what is called as atopic generated, जो जेनेटिकली फैक्टर से ट्रांसमिट हुए ट्रीज के कोई भी टाइप ऑफ प्रोटीन ऐसा सीक्रेट होगा तो उसके सामने वो
रिएक्शन देगा ही देगा. ऑल्दो द इम्यूनोग्लोबुलिन ई एलिवेटेड इन सम नॉन एटोपिक डिसीज, जो एटोपिक फॉर्म से नहीं हो रहे ऐसे ऐसे टाइप ऑफ डिसीज कॉज होंगे जो उसके सामने एलर्जेंस के सामने वो अपना फीडबैक नहीं दे सकता, जैसे कि मेलानोमास एंड द हेलमिनिथिक इन्फेक्शन. हेलमिनिथिक इन्फेक्शन दैट इज अ वर्म्स ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स. What are the treatment behind hypersensitivity type 1? That is the drugs non-steroid anti-inflammatory जैसे antihistamines. वो क्या कॉज करेगा? ब्लॉक द हिस्टामाइन रिसेप्टर. जितना हिस्टामाइन रिलीज होगा उसी तरह से इंजरी कॉज होती, तो पहले सबसे पहले क्या होगा? हिस्टामाइन को कवर्ड करेगा, ब्लॉक करेगा. एंड स्टीरॉइड्स, तो थियोफेलिन और द एपिनेफ्रिन prolonged or increase the CMP levels into the muscle which inhibits the degranulation. Immunotherapy. What are the immunotherapy? The desensitization, hypersensitization, also known as what the allergy. शॉर्ट्स मीन्स की इम्यूनोथेरेपी हम ट्राई करेंगे जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई के साथ बाइंड कम होगा कि जिसके कारण एलर्जीज कम बाइंड होके, जैसे कि ब्रैकेडाक्टिन एंड हिस्टामाइन रिलीज भी कम होगा, और मास्ट सेल की एक्टिविटी भी कम होगी कि जिसके कारण हम इम्यूनोथेरेपी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो इम्यूनो एंटीबॉडी के साथ की थेरापेटिक फॉर्म है. The injection of the allergens to reduce the immunoglobulin E on the mast cell and produce the immunoglobulin G. Second type, type 2 hypersensitivity. What is the type 2 hypersensitivity? The type 2 hypersensitivity is also known as a cytotoxic hypersensitivity and may affect a variety of the organs and the tissue. जो type 2 hypersensitivity है, जो नॉन करता है cytotoxic hypersensitivity, जो में अफेक्ट करता है वेराइटी टाइप ऑफ द ऑर्गन्स एंड टिश्यू, जो वेराइटी टाइप ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू को अफेक्ट करता है. जैसे कि कौन कौन सा अफेक्ट करता है तो हम देखते हैं. द एंटीजेंस आर normally endogenous although the exogenous chemical agents like the haptens. haptens किसको बोलते हैं कि एक ही टाइप का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बनेगा, बहुत सीरियल टाइप में बनेगा, एक साथ राउंड फॉर्म में बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अ हैप्टेंस. जो नॉर्मली कैसे हो सकता है? एक्सोजीनियस केमिकल एजेंट्स द्वारा भी हो सकता है और एंडोजीनियस केमिकल एजेंट्स के साथ भी हो सकता है. Which can attach to cell membrane can also lead to the type 2 hypersensitivity. जो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा और वो सेंसिटिविटी के साथ हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन को कॉज करेगा, जैसे ड्रग इंड्यूस्ड हेमोलाइटिक अनीमिया, ग्रेनुलोसाइटोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आर द सच एग्जांपल ऑफ द हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन. कि जो क्या कॉज करेगा? इंड्यूस ड्रग इंड्यूस हेमोलाइटिक एनीमिया मीन्स की हीमोलाइटिक मीन्स के हीमोग्लोबिन लेवल क्या हो जाएगा? उसमें हीमोग्लोबिन आरबीसी में रप्चर होगा. ग्रेनुलोसाइटोपेनिया मीन्स की जो जो कॉज हो रहा है, साइटोपेनिया मीन्स की अफेक्टिविटी ग्रेनुलेटिक फॉर्म्स की कम हो रही है. एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स की जो प्लेटलेट्स अकरेंस फॉर्म हो रहे हैं उसमें ब्रेक डाउन होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. सच एग्जांपल जैसे पेनिसिलिन मैनेजर आल्सो बिलोंग्स टू द दिस क्लास. मींस की पेनिसिलिन कोई टाइप ऑफ द एलर्जेंस ड्रग जो हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस करती है इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड सेल्स और ब्लड रिलेटेड फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पेनिसिलिन एलर्जी आल्सो बिलोंग्स विद दिस क्लास. द रिएक्शन टाइम इज माइन्यूट टू द आवर्स. जो रिएक्शंस का टाइम है वो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? मिनट से लेके आवर्स तक बढ़ेगा. मीन्स की माइनर मिनट्स में भी हो सकता है और आवर्स तक भी चल सकता है. मीन्स की उसका एक्सपोजर टाइम जो ड्यूरेशन में आवर्स तक का है. टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इज प्राइमरीली mediated by antibodies of the immunoglobulin M और immunoglobulin G. Classes and complement means कि जो immunoglobulin type 2 hypersensitivity is primarily mediated by the antibodies of the immunoglobulin M और immunoglobulin G. अब इम्यूनोग्लोबुलिन एम आई बात आई है तो ब्लड ग्रुप की बात यहाँ पे आएगी ही आएगी कि जो किस पे पकड़ कर रहा है एंटीबॉडीज ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन एम और जी, जो कॉज कर रहा है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए. कॉम्प्लीमेंट पाथवे जैसा ही एक्टिवेट होगा उसी तरह से फेगोसाइटोसिस और ऑब्जोनाइजेशन फॉर्म वहां पे अकर होगा, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंगल्फ करेगा क्योंकि वो हमारी बॉडी में एंटीजन को समझेगा, इसीलिए फेगोसाइटोसिस मूवमेंट यहाँ पे बनेगी. These lesions contain antibody complement and the neutrophils. एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के साथ बाइंड होगी और न्यूट्रोफिल्स के साथ वो एक्टिविटी स्टार्ट होगी. इसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स के देखते हैं हम आरएच फैक्टर इनकॉम्पेबिलिटी मींस की जो आरएच फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव का जो एग्जांपल है जो उसकी बात हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज टू आरएच एंड द इम्यूनो complex RBC antigens, that is RH positive baby born to the RH negative mother. First time it's fine,
but whenever the second time have the antibodies to RH from the first pregnancy, because जो बेबी पॉजिटिव आया है RH मदर से आया, इसीलिए इंट्रोड्यूस क्या होगा कि उसके उसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑलरेडी नेगेटिव का अप्रोटिएट फॉर्म होगा, मीन्स की मदर में भी फादर के द्वारा वहां पे पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे इनलेड हुआ है. सो सेकेंड टाइम जब बेबी होगा तब क्या होगा, क्रॉस फॉर्म टू द किल्स हिज ओन आरबीसीज, कि जो सेकंड टाइम फॉर्म होगा, फर्स्ट टाइम उसका एक्सपोजर्स होगा, तब क्या होगा स्टूडेंट्स, यही कहने को मीन यही है, सबको पता है कि जो पॉजिटिव मदर है उसमें पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है और सामने वाला ग्रुप पार्टनर उनका नेगेटिव है, तो जब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कॉज होगी तो वो क्या करेगा, खुद के ही आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, बिकॉज हमारे बॉडी में उसी तरह का एंटीबॉडी का प्रेजेंटेशन अभी तक बी सेल ने याद नहीं किया, मीन्स कि उसका एक्सपोजर हुआ नहीं है. तो फर्स्ट टाइम उसका एक्सपोजर नहीं हुआ है तो वहां जाके प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, मीन्स कि उसका एस्टेब्लिश नहीं करने देगा, क्योंकि वहां पे आने के बाद वो ऐसा ही समझेगा कि यहाँ पे एंटीबॉडी है. और तो सेकेंड टाइम जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, जो सेकेंड टाइम फॉर्म हो रहा है, तो सेकेंड टाइम में ऑलरेडी फर्स्ट टाइम जो हमारा एक्सपोजर हुआ तो ऑलरेडी मदर में वो बी सेल में उन्होंने रिमेम्बर कर लिया है, तो उसके रीजन बिहाइंड वहां पे कोई भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने का चांसेस बहुत कम रहता है, बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर्स ऑफ द नेगेटिव फैक्टर. तो याद रखना कि फर्स्ट टाइम एक्सपोजर कैसे होता है और वो क्या कॉज करता है, सेकंड टाइम एक्सपोजर में क्यों कॉज नहीं करता है, उसका ये फैक्टर है. नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, देयर इज अ डेवलपमेंटल ऑफ द एरिथ्रोब्लास्टोसिस एंड विद द, जो हमने फिगरेटिक एस्पेक्ट से देखा है, तो प्रिवेंशन विद द रोकमेंट फैक्टर, कि जो फर्स्ट बार एक्सपोजर हुआ तो बेबी टर्मिनेट हो गया, जो एक्सपोजर नहीं हुआ था इसका रीजन बिहाइंड क्या होगा कि सेकेंड टाइम एक्सपोजर्स के टाइम पे वहां पे कोई भी टाइप ऑफ द इन्फेक्शन, कोई भी टाइप ऑफ द एबनॉर्मलिटी फॉर्म्स प्रेगनेंसी में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, उन्होंने मेमोराइज कर लिया था, सेकेंड टाइम मेमोराइज ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो उसके कारण वहां पे कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांसेस नहीं, मिसकैरेज होने का चांसेस नहीं हो सकता. Diagnosis, how it will be diagnosed. So the diagnostic test includes the detections of the circulating antibody against the tissue, involve the persons of the antibody and complement in the lesions by the immunofluorescence, means की biopsy. बायोप्सी के ड्यूरेशन में हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि एंटीबॉडी उसके सामने कौन सी इन्वॉल्व हुई है, टाइप ऑफ द इंजरी एंटीजन एंटीबॉडी का फॉर्म वहां पे बना है, तो वो हम बायोप्सी टिश्यू में उनका पोर्शन लेके हम इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेक्निक के साथ हम कर सकते हैं कि एक्सपोजर हुआ है कि नहीं हुआ है. The staining pattern is normally smooth and the linear, such as that seen in a Gottpaster's nephritis, means की ड्रीनल एंड द लंग बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो स्टेनिंग पैटर्न हो रही है, जो नॉर्मली स्मूथ और द लीनियर मसल्स को वो डैमेज कर रहा है, जो गुड पास्टर हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हम देखेंगे कि जो नेफ्राइटिस कंडीशन अकर हो रही है कि उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, रॉन्ग इंटरप्रेट के कारण, रॉन्ग एंटीबॉडी प्रोडक्टिविटी के कारण वहां के बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रहा है और डैमेज कर रहा है ड्यू टू ऑफ द इन्फेक्शन कैटेगरीज, जो कोई भी तरीके से आ सकता है, वो एक्टोपिक के रीजन भी आ सकता है, हेलमिनेटिक के कारण भी आ सकता है, आउटर एक्वायर्ड जेनेटिक कोई भी रीजन बिहाइंड हो सकता है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को वो डैमेज कर रहा है, वहाँ हिस्टामाइन और ब्रैकाडाइन फॉर्म क्या होगा, रिलीज ज्यादा होगा. द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स द एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेटिव एजेंट्स, वहां पे जाके हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो हिस्टामाइन को ब्लॉक करेगा, आगे भी हमने देखा था, और ब्रेडाटेक्टाइनिन को ब्लॉक करेगा, जिसके रीजन में इम्यूनोग्लोबुलिन ई वहां जाके सेटल डाउन नहीं होगी और आगे की मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती. दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी. द नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स टाइप 3 एंटी hypersensitivity reactions, that is antigen antibody immune complexes that is mediated with the immunoglobulin G. जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ हम बात कर रहे हैं, जो किसके साथ मेडिएटेड, इम्यूनोग्लोबुलिन G. आगे की इम्यूनिटी किसके साथ बाइंड की, तो इम्यूनोग्लोबुलिन M और इम्यूनोग्लोबुलिन G. और टाइप 1 सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो था वो इम्यूनोग्लोबुलिन E के साथ ये बाइंड था. याद रखना ये टाइप 3 हम पढ़ रहे हैं. टाइप 1 immunoglobulin E, type 2 immunoglobulin G and M, and the type 3 only mediated with the immunoglobulin G. The large amount of the antigen and antibodies from the complexes into the blood, जो large amount है जो antigen antibodies जो complexes blood में देखने को मिलते हैं, if not eliminated can deposit in capillaries or joint and the trigger with the inflammation, कि जो eliminated form deposit में form देखने को मिलता है capillary में और joint और triggers with the inflammation. The reactions may be general, that is example serum sickness, जो serum sickness syndrome, or may involve individually into including the skin, जो systematic जो skin के related जो भी disorders है उसके साथ.
then including organ skin systematic lupus erythematosus arthritis reactions जो is जो systematic cause के ड्यूरेशन में हमें देखने को मिला है किडनी lupus नेफ्राइटिस जो हम ये सभी डिसऑर्डर्स हम सिस्टमेटिक पैथोलॉजी में देखेंगे किडनीज lupus nephritis एंड द लंग्स एग्जांपल एस्परजिलस के कारण जो भी रेस्पिरेटरी फॉर्म्स में डिफेक्टिविटी कंडीशन एस्परजिलोसिस दैट इज वन ऑफ द फंगस नेम जो हमने पोलन्स प्रोडक्ट देखी थी पॉल्यूटेड मटेरियल्स के उसके कारण लंग्स में डिफेक्टिविटी फॉर्म हो रही है उसकी इफेक्टिविटी जॉइंट एग्जांपल दैट इज द जॉइंट एग्जांपल दैट इज द व्हाट स्टूडेंट्स की जॉइंट जो एग्जांपल में दे रहे थे रूमेटॉइड आर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस व्हाट इज कॉल्ड एज द रूमेटॉइड आर्थराइटिस मींस की जो भी रूमेटॉइड पोर्शंस में कोई एक पोर्शंस blockage हो जाना that is called as what a rheumatoid arthritis or other organs. These reactions may be the pathogenic mechanism of disease caused by the many microorganisms की जो पैथोजेनिक जो mechanisms को cause करेगा और many microorganisms को वो और microorganism को बनाएगा. नेक्स्ट द रिएक्शंस में टेक द 3 to 10 आवर्स कितना एक्सपोजर्स का कितना टाइम लगाता है वो स्टूडेंट्स की 3 to 10 days सॉरी 3 to 10 आवर्स दैट इज द व्हाट इज दैट कॉज स्टूडेंट्स की उसका एक्सपोजर्स का टाइम ज्यादा है थोड़ा कि जो 3 to 10 आवर्स लगाता है आफ्टर द एक्सपोजर्स ऑफ द एंटीजन का एक्सपोजर्स होने के बाद उसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 10 आवर्स का है It's mediated by the soluble immune complexes. What is called as the soluble immune complexes? के जो antigen antibody fuse होके reaction secrete करना start कर देता that is called as what are immunocomplexes. Then they are mostly of the immunoglobulin G classes, although immunoglobulin M may also be involved. कि जो mostly क्या involve हो रहा है immunoglobulin G classes और immunoglobulin all the M में भी involved जो दोनों की दोनों क्या हो रहा है involved हो रहे हैं mediate हो रहे हैं The antigens may be exogenous, chronic, bacterial, viral और parasitological infection. ये सभी टाइप ऑफ इन्फेक्शन टाइप 3 जो भी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है उसमें कौन कौन से टाइप का जो भी एक्वायर्ड फैक्टर से वो जो एक्सोजीनियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन लगा है जैसे कि क्रोनिक बैक्टीरियल लॉन्ग टाइम जैसे ट्यूबरक्लोरोसिस दैट इज अ क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन वायरल और द पैरासाइटिक इन्फेक्शन वायरलिटिक फॉर्म का हमने बहुत सारे वायरस के एग्जांपल्स देखे थे जैसे पोलियो वायरस है जो अभी तक का उसका वैक्सीन फाइंड आउट नहीं किया गया और उसका एक्सपोजर जिसके लिए हमने एटेन्यूटेड वैक्सीन का यूज किया था कि जब एक्सपोजर होगा तभी वो वैक्सीन का डोजेस हम देंगे जैसे रेबीज वायरस के रेबीज वायरस में कौन से टाइप ऑफ द वैक्सीनेशन फॉर्म होता है एटेन्यूटेड की जो वायरस को केमिकल एजेंट्स के साथ वो वायरस को सप्रेस करेगा तो दैट इज वायरस और पैरासाइटोलॉजिकल इन्फेक्शन जितने भी पैरासाइट्स टाइप ऑफ द इन्फेक्शन जैसे मलेरिया है डेंगू फीवर है राइट तो ये सभी पैरासाइटोलॉजिकल इन्फेक्शन है और एंडोजीनियस व्हाट आर द एंडोजीनियस मींस की नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यूनिटी मींस की कोई भी ऑर्गन्स के स्पेसिफिक नहीं है जनरलाइज इन्फेक्शन करेगा हमारी बॉडी में जैसे इम्यूनिटी मींस की जैसे कि डायबिटीज जो हमारी बॉडी हमारी सामने ही अगेंस्ट में एंटीबॉडी एंटीजन डेवलप करती है कि जो सिक्रेशंस को इंसुलिन सिक्रेशंस पे इफेक्टिविटी करती है एग्जांपल systematic another example systematic lupus erythematosus and the SLE that is the type 3 antigen hypersensitive reaction system the antigen is soluble and not attached to the organ involved means कि जो antigen है soluble और attach नहीं करता organ के साथ वो involved नहीं रहता the PMNs and the macrophages bind what is called as the PMN that is inflammatory reactions what कौन सा inflammatory form है तो polymorphonuclear जो सेल्स होते हैं जो पीएमएन फैक्टर ल्यूकोसाइट्स के सेल है उसके साथ और माइक्रोफेजेस के बाइंड टू इम्यून कॉम्प्लेक्स वाया द क्रिस्टलाइजेशन फ्रैगमेंट्स आर एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिफ्रैक्टेड आर जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जो फैक्टर है उसके साथ वो बाइंड होगा और फेगोसाइटोसिस कॉम्प्लेक्स बनेगा बट क्या होगा ये सभी फैक्टर बन रहे हैं इन्फ्लामेशन कॉजेस के ड्यूरेशन में जो फेगोसाइटोसिस का कॉम्प्लेक्स इसको रिप्लेस कर रहा है मींस कि वो उसको फेगोसाइटोसिस होर्मोन को बना रहा है but if unable to phagocytose the immune complex can cause the infections via the C activation what means ki complementary pathway activation example C3A C4A C5A and the frustrated of the phagocytosis जो activate हो रहा है phagocytosis movement जो अगर immune complex नहीं हो रहा है तो क्या cause होगा inflammation
कॉज होगा किसके, डिप्लेशन होगा ना, डिप्लेशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एफसीआर फेगोसाइटोसिस कॉम्प्लेक्स बनेगा। बट एक अनदर क्राइटेरिया यहाँ पे दिया, एक अल्टरेशन वे दिया है कि अगर फेगोसाइटोसिस मूवमेंट वहां पे नहीं बनेगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ, तो सी कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे जो है वो एक्टिवेट करेगा। अगर वो नहीं कर रहा है तो ये एक्टिवेट करेगा। उसके रीजन बिहाइंड क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा और फेगोसाइटोसिस बैडली वहां पे अकड़ होगा। Diagnosis and the treatment. What are the diagnosis and what are the treatment behind of that? So diagnosis is involved the examination of the tissue, biopsy for the deposits of the immunoglobulins and the complementary by immunofluorescence microscopy.